ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ جناب، دنیا کے اس خطے میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں وہاں جب کبھی بادل گھر کر آئیں یا بارش برسے تو لوگ روایتی طور پر خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ شاعروں کی طبیعت جو ہے کچھ اور رواں ہو جاتی ہے، رومان پسندوں کا جو مزاج ہے کچھ اور زیادہ رومانوی ہو جاتا ہے، لڑکے بالے موسم کا جو مزہ لینے کے لیے گھر سے باہر کا رخ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو خشک مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کم از کم پکوڑوں اور چائے وغیرہ کا اہتمام کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے ادب میں برسات خوشی، رومان، رنگ اور کھیل کود کا استعارہ بھی ہے، لیکن جب کراچی میں بادلوں اور بارش کی بات ہو تو بہت سے جو شہری ہیں وہ سہم جاتے ہیں، دہم جاتے ہیں۔ انہیں خوشگوار موسم سے زیادہ ان سڑکوں کی فکر ہوتی ہے جن پر انہیں بارش کے دوران یا بارش کے بعد سفر کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھروں، دکانوں اور دفاتر کے لیے پریشان ہوتے ہیں جن میں بارش کے ساتھ ساتھ گٹر کے پانی کے داخل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور پھر کراچی کا کوئی جیالہ شہری جو ہے کراچی کی ترجمانی کچھ یوں کرتا ہے: یہ شہر ہے جنون کا، یہ کھیل اپنی شان ہے، ہوا میں جیت کا سرور ہے، جھکیں گے ہم یہ تیری بھول ہے، لگائے چھکے ہر قدم، پلٹنے والے گیم ہم، اب دیکھو ہمارا بھرم، یہ ہے کراچی، یہ ہے کراچی۔ تو جناب، مانا کہ کراچی نام ہے جنون کا، مانا کہ کراچی والے جو ہیں بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، لیکن اس طرح کی آزمائشیں آخر کب تلک؟ کیوں ہمارے شہری حکومت جو ہے بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں کر سکتی؟ گو کہ میئر کراچی اسی پروگرام میں یعنی کہ ایجنڈا پاکستان میں برسات شروع ہونے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اربن فلڈنگ کی جو ہے پیش گوئی کر چکے تھے۔ ڈی ایم اے کا بھی وارننگ آ چکی ہے اور بارش کا جو فور کاسٹ ہے اگر خدا نخواستہ آتی ہے تو نالے سارے چوکڈ ہیں، نالے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ کلیئر پانی بہ جائے۔ میئر صاحب جو ہیں وہ صرف پیش گوئی کر کے رہ گئے۔ صوبے کے جو طاقتور وزیر بلدیات ہیں وقت پر نالے صاف نہ کروا سکے۔ وفاقی وزیر بحری امور جو پچھلی برسات میں نالے صاف کروانے میں بڑا ایک فعال کردار ادا کر رہے تھے، اس بار وہ میدان میں ہی نہیں اترے۔ اور کراچی کے ساتھ جناب وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، بہت سی شاہراہیں، سڑکیں، گلیاں، محلے، دکانیں، دفاتر جو ہیں وہ زیر آب آ گئے۔ بہت سے علاقوں میں بجلی جو ہے کئی گھنٹوں غائب رہی، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پانی میں پھنس گئی اور لاتعداد گھروں میں پانی گھس گیا۔ اور پانی وہ صرف برسات کا پانی نہیں تھا، گٹر کا پانی تھا۔ بارش کے پانی سے نمٹنے میں ہمیں اور کتنی دہائیاں لگیں گی؟ اس سے نمٹنے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی؟ کراچی والوں نے کیا شہری حکومت کے در پہ جانا ہے، صوبائی حکومت کے پاس جائیں یا وفاقی حکومت کے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہمیں جو ہے آج تک جواب نہیں ملا، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہم آج تک جو ہیں ان آسان یا مشکل سوالوں کے جوابوں کے منتظر ہیں۔ جناب، اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہمیں فون لائن پر ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ اسکائپ پہ زوم سے ہمارے ان سے رابطہ ہو جائے۔ ہمارے دوسرے مہمان آج کے امین الحق صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، MNA ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محترم فردوس شمیم نقوی صاحب، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم شروع کریں گفتگو جو ہے امین الحق صاحب سے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی جماعت کے بارے میں، کہ ٹھیک ہے حکومت کا حصہ تو ہے لیکن بڑا بے بس قسم کی اتحادی ہے اور جو اختیارات ہیں وہ اتنے ہیں نہیں۔ شہری حکومت آپ چلا رہے ہیں جناب امین الحق صاحب، اور دنیا بھر میں جس طرح کی شکایتیں بھی ہم کر رہے تھے، سنا رہے تھے آپ کو، کراچی کا دکھ جو ہے اس کے ازالے کے لیے لوگ شہری حکومت کا کہتے ہیں نا دامن پکڑتے ہیں کہ جی وہ کچھ مسئلوں کو حل کرے، لیکن یہاں پر جو ہے آپ کے جو میئر ہیں وہ صرف پیش گوئی کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، کیوں آخر؟ جی امین۔ جی عامر، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ دیکھیں کہ میئر صاحب فیلڈ میں موجود تھے اور انہوں نے ایڈوانس میں پیشن گوئی کی، لوگوں کو بتایا، حکومت کو جوڑا، میڈیا کو بتایا کہ دیکھیں یہ ایک جسے کہتے ہیں رین اسپیل آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میئر کے پاس یہ افسوس آتا ہے کہتے ہوئے بھی کہ دنیا کے چند بڑے شہروں میں کراچی 3 کروڑ کی آبادی، 70% فیڈرل اور 90% ہم پروونس کو دیتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے ہمیں شرم سی آتی ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت جو اس شہر پر جسے کہتے ہیں کہ تمام ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے اپنے پاس رکھے ہوئے،
अगर उसको डिसेंट्रलाइज करें और कुछ रेवेन्यू कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के भी पास आए तो वो उन तमाम पैसों से जो नाले साफ करने के मामलात हैं या जो इक्विपमेंट खरीदने के मामलात हैं और जो लोगों की तनख्वाह बर वक्त तनख्वाह देने की बात है वो अपने पाँव पे खड़े होकर खुद कर सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ना होने के बिना पर हमें ये बात मीडिया पर आकर सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, मीडिया को बताना पड़ता है। मैं तो आप जो है मीनुल हक साहब, आप ये कह रहे हैं क्योंकि वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है MQM के पास, तो उसने अपने हाथ उठा दिए, कुछ नहीं कर सकती। तो आप लोग जो है सिर्फ तबर्रुक के लिए ये अलामतन जो है मैं कराची है और आपके पास सिटी गवर्नमेंट है, ये कहूँ मैं जी नहीं, मैं अर्ज करूँ। देखिए दो डिफरेंट चीज़ें। नंबर वन, बिल्कुल आप सही कह है और ये मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों को इस बात का पता है कि रेवेन्यू जनरेट करने वाले तमाम इदारे सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हैं, लेकिन कराची को हम ओन करते हैं, कराची के अवाम के साथ खड़े रहते हैं, दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो MKM का पूरा सिस्टम ग्राउंड पर मौजूद होता। आप देखें कल का दिन था, कल एन एवरेज कराची में तकरीबन 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई है और आज लगभग 110 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो जो हमारा सिस्टम था, जो हमारे जिसे कहते हैं UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, जिम्मेदारान, अरकान असेंबली, सब के सब ग्राउंड पे अपनी अपनी जगह पे मौजूद थे, अवाम के दरमियान थे, अवाम के जिसे कहते हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते रहे। कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ है कि UC चेयरमैन ने और अरकान असेंबली ने अपने खर्च से एक्सकेवेटर को किराए पे लिया और चॉकिंग पॉइंट खोलने की कोशिश की। अगर आप देखें ताहिर विला का हो या जो कैफ़े प्याला वाला चॉकिंग पॉइंट हो या शफीक मोड़ का चॉकिंग पॉइंट हो, इवन बाद में औरंगी टाउन हो या सुरजानी के मामलात हों, तो वहाँ पर भी जिसे कहते हैं अपनी मदद आपके तहत MKM के कारकुनान ने, जिम्मेदारों ने और जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने कोशिश किया होगा, लेकिन वो कहते हैं मीनुल हक साहब के मतलब बहुत कम है, बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिहाज से। मतलब है कि क्योंकि सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो मसला हल नहीं हो पा रहा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप ये बताइए, PTI को 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें माशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में मिली, लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी, 2 बरस गुजर गए, हमें ग्राउंड पे PTI नज़र नहीं आ रही। मतलब है कि पिछले बरस यकीनन अली ज़ैदी साहब ने कुछ हिलजुल की थी, लेकिन बाद में जो कराची वालों को तवक्को थी उस पर क्यों नहीं पूरे उतर पा रहे? वफाक का क्या रोल बनता है? बनता भी है, नहीं बनता? जी तो देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा आसान तरीका है आपके सवाल के जवाब का। इस्लामाबाद के अंदर वफाक ज़िम्मेदार है या वफाक का कोई बल्दियाती इदारा जिसका नाम CDA वो ज़िम्मेदार है? लाहौर के अंदर कौन ज़िम्मेदार है, सियालकोट में कौन ज़िम्मेदार है, फैसलाबाद में कौन ज़िम्मेदार है, उसी तरीके से कराची में भी वही इदारा ज़िम्मेदार होगा। तो नकाशी आब जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? वो स्टॉर्म वाटर सिस्टम होगा तो नकाशी आब होगी। जिस शहर में नकाशी आब का कोई सिस्टम ही नहीं डाला गया, जो था वो नाले थे, वो नाले जो तारीख़ी तौर पे मौजूद थे, ना उन नालों को कभी पक्का किया गया, ना उन नालों में कोई हिसाब किताब ये रखा गया कि इसके अंदर कूड़ा ना आए, ना लोगों में इतना शऊर पैदा किया गया कि नालों के अंदर सिर्फ बरसात का पानी आना चाहिए, उसमें गटर का पानी ना मिलाओ, ना इसके अंदर कूड़ा फेंको। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी, ये हालात इतने ख़राब तो ना थे कभी जो अब हैं। तो इसका मतलब ये कि जो 2013 से बल्दियाती निज़ाम लाया गया है, उस बल्दियाती निज़ाम में कुछ सुखम है और उसी सुखम को देखते हुए हमने असेंबली में पिछले हफ्ते जब ये बल्दियाती निज़ाम का पीरियड मुकम्मल हो रहा है, बिल रख दिया है। हम समझते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह इस शहर को 6 डिस्ट्रिक्ट में ना बांटा जाए। हम समझते हैं कि इस शहर के अंदर इतने कैंटोनमेंट बोर्ड्स नहीं हो सकते जो कि फ़ौज के अंडर हों। हम समझते हैं कि कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है वो मेयर कराची को आंसरेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का मेयर बने। मसला ये, इस शहर का एक वाली वारिस होना ज़रूरी है और उस वाली वारिस का नाम जैसे न्यूयॉर्क सिटी का, लंदन सिटी का मेयर होता है। इधर सादिक साहब लंदन में तमाम फैसले करते हैं, मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी उनके अंडर होती है।
اس شہر کو جو کہتے ہیں نا بانٹ بانٹ کے ایسا نظام کریٹ کر دیا ہے کہ اس شہر کے لیے اب کوئی جواب دہ نہیں ہے، اور یہ شہر انگورنبل ہو گیا ہے انڈر دس سسٹم۔ پولیس وہ علیحدہ، اس کے اندر پولیس کے اندر کرائم علیحدہ، ڈسٹرکٹ علیحدہ، ٹریفک علیحدہ، انویسٹیگیشن علیحدہ، میونسپل کنٹرول معلوم دیا، ڈسٹرکٹ علیحدہ، یونین کونسل علیحدہ، کینٹونمنٹ بورڈ علیحدہ، جس طرح چاہیں قیمہ کر کے دیکھ لیجئے وہ کر کے رکھ دیا ہے، اور کوئی آدمی اس کا جواب دہ نہیں ہے۔ چیف منسٹر کہتے ہیں میں صوبے کو چلاتا ہوں، لوکل باڈیز منسٹر کہتا ہے میں لوکل باڈیز کو چلاتا ہوں، کراچی کا میئر کہتا ہے میرے ذمہ دار کراچی ہے لیکن میرے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ مجھے اتنے فنڈز دیے جاتے ہیں جو اتنے بڑے شہر کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اگر ایک شخص کو اور ایک ادارے کو وہ پیسے ہی نہیں دیں گے جو کہ اس شہر کو چلانے کی ضرورت ہے، بھائی ایسٹیمیٹ تو کرو کہ خرچہ کتنا لگتا ہے، اگر آپ اس سے ایک چوتھائی رقم دیں گے پھر تو ایسے ہی تو چلے وہ گا۔ آپ آدمی نے اپنا فنکشنل کیسے پوری کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو کور پرابلم ہے اس کی آپ نے نشاندہی کی۔ میں ذرا سینیٹر تاج حیدر صاحب کی طرف چلتا ہوں، سب سے سینئر موسٹ ہیں، دانشور ہیں، ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ۔ تاج صاحب، سندھ میں ماشاءاللہ 12 برس سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکمراں ہے، اور ماشاءاللہ تمام اختیارات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو اور زیادہ اختیارات آ گئے۔ پھر کیا وجہ ہے وہ بقول حبیب جالب کے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، اپنا حلقہ تو ہے حلقہ زنجیر اور حلقے ہیں سب امیروں کے؟ تو کیا وجہ ہے کہ بدل نہیں رہا کچھ؟ 12 برس میں تو پوری آپ کہتے ہیں انقلاب لا سکتے ہیں، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ۔ اس وقت کل شام سے بلکہ کل دوپہر سے محترم میئر کراچی اور ہماری جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، میونسپل کمیٹیز، ڈی ایم سیز، ان کے سربراہ اور حکومت سندھ کے کم از کم 2 وزراء اس سڑکوں پہ ہیں اور وہ اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس طریقے کے الزامات دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو تو جو کچھ بھی کوشش اس وقت ہو رہی ہے، جی ہاں مسائل ہیں، لاکھوں آدمی اس وقت مسائل کا شکار ہے، لیکن میرے خیال سے ہمیں حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے ان کوششوں کی کہ جو مل جل کے سب لوگ کر رہے ہیں۔ تاج صاحب، یہ جو کوششیں ہیں یہ تو بڑی فائر فائٹنگ ہے نا۔ ہم جو بات کریں براڈر ایک بڑا ہم ایک منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک عرصے سے یہ پرابلم ہے اور ہر سال ہوتا ہے، ہر برسات میں ہوتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو آپ لوگ فائر فائٹنگ کرتے ہیں، نکلتے ہیں، وزراء بھی نکلتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل جو ہوتا ہے دیر پا حل نہیں ہوتا۔ یہ میرا سوال آپ سے۔ جی عامر صاحب، آپ نے عزت افزائی کی ہے، میں طلب کیا ہے تو میں اسی طرف جا رہا تھا جناب کہ کراچی کی ٹوپوگرافی کیا ہے، کراچی کے کن علاقوں میں پانی جمع ہے، کن علاقوں میں جمع نہیں ہے، کراچی میں جو برساتی نالے ہیں ان کا جو فلو ہے اس کی کیا سمت ہے، کس طریقے سے، اور کہاں میری دانش کے مطابق یا میرا جو تجربہ ہے یا جو میری بات چیت ہوئی ہے یا اس میں کہاں پرابلم آ رہی ہے۔ میں آپ نے کیونکہ یہ عزت افزائی کی ہے تو میں یہ موقع لوں۔ دیکھیے، شمال سے جنوب کی طرف، سمندر کی طرف، پہاڑیوں سے لے کے سمندر کی طرف کراچی کے اندر ایک سلوپ ہے۔ یہ نیو کراچی کے علاقے ہو گئے، سرجانی کے علاقے ہو گئے، ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو گیا، ہمارا اورنگی کا علاقہ، یہ اونچے ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ لیاری ہو گیا، کلفٹن ہو گیا، ڈیفنس ہو گیا، صدر ہو گیا، یہ نیچے ہیں۔ اچھا، اب جو برساتی نالے ہیں وہ ان اونچے علاقوں سے، کیونکہ اب یہ فزکس کا قانون ہے تو اس میں کیا کیا جائے، اونچے علاقوں سے نیچے علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں بھی ان کا فلو رکتا ہے کہیں تو وہ پھیلنے لگتا ہے پانی۔ اچھا، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ علاقے جو نشیب میں ہیں، جو سمندر کے قریب ہیں، وہاں پہ سڑکیں بالکل خشک ہیں، پانی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے اس کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے۔ ہرچند کے وہ بالائی علاقہ ہے، وہ اونچائی پہ واقع ہے، اور اورنگی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پانی تو وہ ہوا نا کہ نالے راہ گزر پانی کی اگر صاف نہیں ہوئی تو تاج صاحب یہی ہونا تھا۔ میرے خیال سے جو میں نے دیکھا ہے، جو اب اس طرف اگر آپ لیاری سے دیکھیں تو وہ پچر نالا ہے جو آئی سی آئی کے پل کے پاس سے جا رہا ہے، کلری نالا ہے جو لیاری کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، بیچ میں ایک چھوٹا نالا ہے جس کو مرحوم عبد الخالق جمعہ صاحب نے کور کر دیا تھا،
और जिसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम अब नहीं होती। इधर मंजूर कॉलोनी का नाला है जो कि, और 2 बड़ी नदियां हैं जो कि इस तीर्थर रेंज से निकल रही हैं, लियारी। अच्छा, वो बदकिस्मती से कि बड़ी आप ज़बरदस्त मालूमात दे रहे हैं वो, लेकिन टीवी के प्रोग्राम जो मुतहम्मिल इतनी कहते हैं ना डिटेल मालूमात का हम लोग हो नहीं पाते। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सवाल मैं फिर आऊँगा इसकी तरफ आपसे, आपके पास कि जी वजह क्या है और उसका हल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मैं खता कलामी कर रहा हूँ। मेरे तीनों मेहमानों से एक सवाल है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर नालों पे एनक्रोचमेंट है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एनक्रोचमेंट है। अभी हम उस पर आते हैं। मतलब है कि जो आपने हमें हेडलाइन दे दी कि मसला क्या है, तो मैं कह रहा हूँ तीनों मेहमानों से मेरा कमोबेश एक ही सवाल है कि अहले कराची अपनी कहते हैं ना मुश्किलात के हल के लिए किसके दर पे जाएं? वो क्या शहरी हुकूमत के पास जाएं, वफाक से इल्तिजा करें, सूबाई हुकूमत के पास जाएं? किसके पास इख्तियारात हैं इन हालात में? अभी हम ये नहीं आइडियल सिचुएशन नहीं कह रहे जो फिरदौस साहब कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। इन हालात में किसके पास इख्तियार है? अमीन उल हक साहब, आप पहले बताइए हमें किसके पास, हम शहरी हुकूमत के पास ना आए, हम किसके पास जाएं अगर बकौल आपके इख्तियार नहीं है? जी देखिए आमिर जी भाई, 18वीं तरमीम के पास तमाम इख्तियारात का मंबा कौन है? सूबाई हुकूमत हो गई है। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर इस तरह के फायर फाइटिंग के सिलसिले में जाना है तो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें। मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की आज, मैं उनके सपोर्ट करता हूं कि हम इस प्रोग्राम में इल्ज़ाम तराशी पे ना जाएं, बल्कि मसले का हल निकालने की तरफ देखें और वे फॉरवर्ड देखें। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ ये चाहता था कि जो भी सूरत हाल है, जो फिरदौस नकवी साहब ने भी कहा कि 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट उसके ऊपर नज़र डाली जाए और देखा जाए कि जो इख्तियारात जो कहते हैं कि पहले कराची मेट्रोपॉलिटन के पास थे, अगर वो आप 100% नहीं तो कम से कम वो तमाम रेवेन्यू जनरेट करने वाले इदारे जिससे उनके अपनी रेवेन्यू की ताकत बढ़ जाए और चीज़ों को हल करने की पोजीशन में आए, तो ये लाजमी तौर पे किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी जगह पे कहीं इंक्रोचमेंट है, आइदर इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आइदर इज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ये ईस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि हम सबों को एक पेज पे होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कराची, कि अगर किसी जगह पर है तो मेरा ख्याल है कि यस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए। उन तमाम लोगों को जो अगर गैर कानूनी तरीके पे मौजूद हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का फ्लो रुक रहा है, तो उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। बात करें ना, आप तजावीज़ दे रहे हैं, मतलब प्रोग्राम में आगे जाके अमीनुल हक साहब इस पर बात करेंगे। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, जो हमारे नाज़रीन भी समझें आप लोगों के तवज्जुह से, वो ये कि जनाब जिम्मेदारी किसकी है इन हालात में भी, यानी कि ये स्टेटस को है। अभी हम आइडियल बात नहीं करें कि क्या होना चाहिए, अभी किसके पास जाएं? तो आपने बताया कि मंबा जो है इख्तियारात का सूबाई हुकूमत है, तो आप ये कहते हैं सूबाई हुकूमत के पास है। यही सवाल अगर मुझे इजाज़त दें, मैं अगर अपोजिशन लीडर फिरदौस साहब से कर लूं। जी आप जुमला मुकम्मल कर लें अमीन जी। देखिए मैं से भी चाह रहा था, देखिए ताकत का मंबा जो है वो सिंध हुकूमत के पास है, लेकिन हुकूमत के पास है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कौन से करना चाहिए? एग्जीक्यूशन केएमसी के जरिए होना चाहिए। वो तो मैंने कहा, वो तो ख्वाहिश है आपकी, मगर वो तो नहीं हो रहा ना। आपके पास इख्तियारात नहीं है, केएमसी के पास जो है कुछ नहीं है। फिरदौस साहब, किसके पास बकौल एमक्यूएम के जो है ताकत का मंबा सूबाई हुकूमत है? आप क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत का कोई रोल है? आप लोग कुछ कर सकते हैं कराची के लिए, नहीं कर सकते? जो कराची ने इत्मीनान का इजहार किया पीटीआई पे। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 148 के तहत 3 टियर सिस्टम है। उसमें एम्पावर्ड अथॉरिटेटिव लोकल गवर्नमेंट का एक क़याम है कि नहीं है। अगर अथॉरिटेटिव लोकल गवर्नमेंट नहीं विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर मौजूद, तो इसके मतलब ये है कि पावर सूबे को डिवॉल्व हुई है कि नहीं हुई। सूबे को पावर डिवॉल्व हुई है, इसके ऊपर तो सब लोग मुत्तफिक हैं कि अब वफाक में 18वीं तरमीम के बाद कॉन्करेंट लिस्ट तो रही ही नहीं, और वो तमाम मौज़ूआत जो इस वक्त शहर कराची के मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब वफाकी मसाइल नहीं, सूबाई मसाइल हैं। वफाक के पास एक और बहुत बड़ा मसला है। वफाक के पास इतना बड़ा मसला और प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि वफाक के पास पैसे नहीं है, इससे कि वो भी 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड के बाद
58.4% सूबों को देने के बाद, डेट फाइनेंसिंग के बाद, डिफेंस के एक्सपेंडिचर के बाद हुकूमत, वफाकी हुकूमत खसारे से शुरू होती है। ना पीएसडीपी के लिए पैसे हैं वफाक के पास, ना तनख्वाहें देने के लिए पैसे हैं। ये सारा काम कर्जे पे हो रहा है। अब आप सोचिए कि जब, और सूबे का हाल ये है कि पिछले 10 साल में जब से 18वीं तरमीम आई है, सूबा सिंध को जिसको 3 बिलियन रुपए मिलते थे 2012 में, आज उसको 1.3 ट्रिलियन रुपए मिलते हैं, जहां उसका बजट जो था 173 बिलियन था डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 173 बिलियन था। आज वही नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 983 बिलियन हो गया। 5 गुना उन्हीं ने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के में इजाफा सिर्फ 25% हुआ है। तो किस तरह इस बढ़ती हुई आबादी के, इसमें प्लानिंग का, सिस्टम का, दोनों का मसला है। मैं बार बार ये कहता हूं, आपको सिस्टम दुरुस्त करना है। जब तक आप अख्तियारात की बिल्कुल सही निशानदेही करके अकाउंटेबिलिटी नहीं शुरू करेंगे इस सिस्टम में, ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा। वफाक कहेगी कि सूबे की जिम्मेदारी है, सूबा कहेगा बल्दियात की जिम्मेदारी, बल्दियात कहता है कि मुझे न रकूम दी जाती है न इख्तियारात दिए जाते हैं, सूबा कहता है कि मुझे वफाक ने पैसे पूरे नहीं दिए। ये कराची के मसाइल मेरे नज़दीक तो उसी वक्त हल होंगे कि इनके पास कराची के अपने वसाइल तो तकसीम इख्तियारात हो। चले उस पर हम तफसील से बात करते हैं कि क्या हल होगा। पहले हम प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई करें, ताज हैदर साहब, की हुकूमत आएगी तो शायद ये टोपी ड्रामा खत्म हो, वरना आवाम कराची के इसी तरह पिसते रहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमतें आती रहे। किसी भी पार्टी की हुकूमत तो कराची के अवाम का मुकद्दर ये बन जाएगा कि पिसते रहेंगे। ताज हैदर साहब, अब एक मैं समझ रहा हूँ कि नज़र ही आ रहा है, कम से कम प्रोग्राम में कंसेंसस हो रहा है कि इख्तियारात का मंबा माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सूबाई हुकूमत के पास है। और अब हम अगर उसको मजीद इंटरप्रेट करें कि एक ज़माने में मरकज़ बहुत ताकतवर होता था, तब सूबा बहुत ताकतवर हो गया, तो वो जो एक कहते हैं ना मिनी डिक्टेटर वाली बात, वो यहाँ पर आ गई है। और आगे निचली सतह पे जो है इख्तियारात वो हैं तकसीम नहीं हो रहे। आप क्या कहेंगे, वाकई इख्तियारात आप इनसे मतलब है कि एग्री करेंगे नहीं करेंगे जो अभी तक गुफ्तगू हुई? देखिए, कानून साजी में मैं शामिल रहा हूँ, लेकिन मैं एक सीधा साधा सा आदमी हूँ। मसला जो है वो ये है कि कराची के 20% तकरीबन इलाके जो हैं उनके अंदर एनक्रोचमेंट्स की वजह से पानी रुक रहा है, और इस वक्त उन एनक्रोचमेंट्स को हटाया जा रहा है। और ये एनक्रोचमेंट्स अगर हट जाते हैं तो अगली बारिश में पानी नहीं रुकेगा और पानी बह जाएगा। ये इतना सा मसला है, सीधा साधा। और इसके लिए मोहतरम मेयर कराची, हुकूमत सिंध, सूबाई हुकूमत और लोकल हुकूमत मिलजुल के काम कर रही है। मेरे ख्याल से उन्हें काम करना दिया जाए तो अच्छा है। और जब तक ये एनक्रोचमेंट नहीं हटेंगे, पानी रिस के बहता रहेगा, वो तेजी से नहीं निकलेगा। चलिए, मसला तो हल कर दिया ताज हैदर साहब मेरे ख्याल में। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि फिरदौस शमीम नकवी साहब मुस्कुरा रहे हैं, और ये संजीदा हो गया था मीनुल हक साहब, वो भी अब देखें इतना आसान सी बात है कि एनक्रोचमेंट हटाना है। मीनुल हक साहब, आप लोगों ने क्यों नहीं हटाया एनक्रोचमेंट? पूरा कराची में मतलब चाहे वो कहते हैं कहीं चाइना कटिंग कोई नाम देता है, कोई नाम देता है, लेकिन क्यों नहीं हटा रहे? बड़ा आसान सा मसला है, ताज भाई ने बता दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं ये सवाल अपनी हुकूमत से मैंने 2-3 दफा किया कि देर क्यों हो रही है। वो ये कहते हैं कि ये कोरोना की वजह से हमें लोग नहीं मिल रहे और ये देर हो रही है। अब इस एक्सक्यूज को आप माने या ना माने, लेकिन अब 12 साल सबके सब लग गए और इन एनक्रोचमेंट्स को हटाया जा रहा है। लेकिन इसको आप जो तबीयत के कवानीन हैं, द लॉज ऑफ फिजिक्स, उनके तहत देखिए, सीधी इंजीनियरिंग है, इसको आप वहां तक ना ले जाइए आईन और कानून और इख्तियार और वो जाहिर है कि जब मसला हल नहीं हो रहा तो लोग पेचीदगी निकालते हैं ना ताज भाई। मतलब आपने तो सहल बात की कि जी पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी राह में अगर बांध दिए जाए, इंक्रोचमेंट हो जाए, तो मीनुल हक साहब आप मुझे बताइए कि मसला इतना सादा सा, अगर एक कंसेंसस बन जाए वफाक में, सूबे में और बल्दियात में कि जी इंक्रोचमेंट हटाना है, तो मसला हल हो गया। आप लोग पता नहीं क्या कहानी हमें सुना रहे हैं, पूरे कराची वाले परेशान सर खुजाते फिर रहे हैं, घर उनके डूब गए, गटर का पानी आ गया, मसला आसान है। जी
جی امین صاحب, میں ایک مثال دے دیتا ہوں. آج سے چند سال پہلے گوجر نالے پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں طرف سے انکروچمنٹ ہٹائی جائے گی. ایم کیو ایم پاکستان نے مکمل اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو سپورٹ کیا کہ بالکل ہٹانی چاہیے, اور جیسے کہتے ہیں کئی کلومیٹر تک معاملے کو حل کیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں طرف یعنی گوجر نالے کی دونوں طرف 10-10 فٹ کی روڈ بھی بنائی جائے گی. افسوس آتا ہے, شرم آتی ہے بولتے ہوئے بھی کہ وہ جو 10-10 فٹ کی روڈ بنانے کے جو پیسے رکھے گئے تھے وہ نہ جانے کہاں چلے گئے. کسی نے اس کو اون نہیں کیا, کسی نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی گئی تھی اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر انکروچمنٹ شروع ہو گیا. تو جو چیز ڈیسائیڈ کی جائے اور جس کے لیے اگر متعلقہ پولیٹیکل پارٹی بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہو جاتی ہیں, اس کے باوجود اس کو اگر نامکمل چھوڑ دیا جائے تو سندھ حکومت کی کن باتوں پر ہم یقین کریں گے؟ وہ وعدہ تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل اس پہ ہو نہیں پاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام یہ تصور کرتے ہیں ان کے ساتھ نسلی بنیادوں پر تعصب کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تو پیپلز پارٹی سے اور سندھ حکومت سے سوال اٹھتا رہے گا مسلسل, میں سمجھتا ہوں. اور صرف یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے نا. اگر آپ اگر جسے کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور میرا خیال ہے کہ آل آف اے سڈن ہو گئی, یہ والا معاملات اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ ٹرانسپورٹ کے معاملات پر آ جائیں, آپ کوڑا اٹھانے کے معاملات پر آ جائیں, آپ ایجوکیشن کے معاملات پر آ جائیں, آپ ہیلتھ کے معاملات پر آ جائیں. تو کراچی تو بیچارہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کھنڈر بنتا چلا جا رہا. صبح میں گھر سے باہر نکلوں, میرے اور آپ کے پاس گاڑی نہ ہو تو ہم چنچی رکشے کے لیے کئی گھنٹے کھڑے رہ جائیں. تو کراچی کے نوجوان طلباء اور طالبات ہیں, اگر صبح 8 بجے عامر آپ روڈ پر آئیں اور فیکٹری پہ جانے والے خواتین کو دیکھیں تو آپ کے بڑی بری حالت ہے. آنسو نکل آئے گا. بسوں کی بیچاری چھت پہ خواتین, نوجوان طلباء اور طالبات مطلب ایک سے بالکل آپ نے نشاندہی کی کہ مسائل کراچی کے, جتنا بڑا شہر ہمارا کراچی ہے اس سے بڑے اس کے مسائل ہیں. اور وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ فیصلے نہیں کر پاتے, مجھے وہ یہ مصرع یاد آیا کہ ارادے باندھتا ہوں, توڑتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو کچھ ہم لوگوں کو اسی چکر میں رہتے ہیں, کچھ ایسا نہ ہو جائے کچھ ویسا نہ ہو جائے. مجھے اگر اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد جب ناظرین دوبارہ آئیں گے تو بات کریں گے کہ جی یہ جو مسئلہ کیا ہے, بدعنوانی ہے, بیگانگی ہے, ہمارے جو اشرافیہ ہے انڈیفرنس ہیں ان کو پرواہی نہیں ہماری. بعض جیسے کہ ہمارے دوست مہمان کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹرکچرل پرابلم ہے, اس سے حل ہونا چاہیے. اور تاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر صرف انکروچمنٹ ہٹا دیں تو کراچی کے جو ہے مشکلات حل ہو جائیں گی. ہم کچھ بات کریں گے کہ اس کی کہتے ہیں نا حل کیا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تو کراچی میں جب بھی بارش ہوئی تو سڑکیں ہی نہیں ڈوبا کرتی. اس بار کی بارشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں پانی آ گیا, گھروں میں پانی آ گیا. پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, اس بار لیکن کہ اتنی برسات ہوئی نہیں جتنا پانی داخل ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, امین الحق صاحب اور محترم تاج حیدر صاحب. اسی مسئلے پہ ہم بات کریں. تینوں جو ہیں فرزندان کراچی ہیں. فردوس نقوی صاحب, مسئلہ کیا ہے؟ نظام کی ساخت کا مسئلہ ہے, مسئلہ جو ہے انڈیفرنس ہے کہ جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں, کراچی کی ایک بیگانگی ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈسکنیکٹ ہے عوام میں اور وہ لوگ جو با اختیار اور صاحب اختیار ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ساری چیزیں ہیں. کچھ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ کم پڑتا ہے, اس کا بھی تعلق ہے. کچھ یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان کے رہتے کراچی میں ضرور ہیں لیکن دلی لگاؤ نہیں ہے. تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کی بھی جو خرابی ہے, جیسے ابھی تاج حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ انکروچمنٹ کی وجہ سے پانی رکتا ہے. اچھا بھائی, انکروچمنٹ ہٹانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی. ناجائز بلڈنگ کا کون بنواتا ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس کے نیچے؟ گورنمنٹ کے نیچے. بات یہ اس شہر میں پانی نہیں آتا بھائی, اس کا نالے کی رکاوٹ سے تو کوئی تعلق نہیں. جیسے امین اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ہی نہیں, وہ بھی معلوم دیتا ہے کہ نالے کی وجہ سے گریویٹی فلو کا تعلق ہے. اس میں کس نے انکروچمنٹ کر دی, اس میں کس نے رکاوٹ بنا دی. تو ادھر کیا ہے, وہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. جی کراچی سرکولر ریلوے کیوں نہیں بن سکتی؟ جی وفاق نے یہ نہیں کیا. انہوں نے پھر کیا کہا, ہم نے منصوبے کا سائز اتنا بڑا کر دیا کہ $2 بلین چاہیے. اب $2 بلین نومن تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. اب رادھا ناچے گی نہیں یہاں کبھی.
इससे कि नॉमन तेल ही नहीं होगा। जैसे कि नॉमन तेल का मतलब ये है कि सिंध हुकूमत कराची को जो वो पैसे पैदा करती है उसमें उसका शेयर दे। इस सूबे में 2007 से PFC अवार्ड नहीं दिया गया। इस शहर की नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चे का अंदाज़ा नहीं है कि कितना खर्चा होना चाहिए। आप देखिए कि नेमतुल्लाह के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जितना बजट दिया जाता था, अगर उसको आप इन्फ्लेशन के लिहाज से एडजस्ट करते तो इस वक्त कराची का बजट 125 अरब रुपए होना चाहिए था, और इस वक्त मिलता कितना है? 35 अरब। या रेवेन्यू रेस करने के लिए दिया जाए कि उनको इख्तियारात दे, प्रॉपर्टी टैक्स पूरा दे दीजिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। कराची का टैक्स है, लोकल टैक्स है, लेट देम कलेक्ट और खर्च करने दें। सर्विस टैक्स जो रेस्टोरेंट्स का है वो दे दें कराची के लोगों को। वाटर एंड सीवरेज के पैसे दें कराची को। मोटर व्हीकल टैक्स जो बनती है उसकी जो फीस आती है वो दें कराची को। और मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, ये नहीं देते। फाइनेंशियल अथॉरिटी मिलनी चाहिए और उसके बाद ही मतलब ये चीज़ें बेहतर होंगी। आपका नुक्ता आ गया ताज हैदर साहब। ये मेरे ख्याल में बार बार जो हमारे बाकी दो मेहमान हैं वो एक ही बात करें कि जी एक बाइख्तियार मेयर जो है वो कराची के मसाइल का हल है, उसी तरह का मेयर जो लंदन में है और जो न्यूयॉर्क में है। क्या कबाहत है? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती कि बाइख्तियार मेयर हो? क्या वजह है इसकी? नहीं, मैंने कहा कि जाहिर है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो सिंध असेंबली बनाती है और सिंध असेंबली के अंदर तरामीम पेश की जा सकती हैं और उन पर डिस्कशन भी हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी ज़रा सी ये भी देख लीजिए कि सिंध हुकूमत कराची पे अपने पास से एनुअल डेवलपमेंट प्लान पे खर्चा कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर आप वो देखेंगे तो वो काफ़ी खर्चा हो रहा है, अच्छा खर्चा हो रहा है। इससे भी ज़्यादा होना चाहिए अगर वसाइल जो हैं वो ट्रांसफ़र होते रहें। अगर ये FBR का फेलियर इतना बड़ा ना हो कि टारगेट ही मीट नहीं हो रहे और उसकी वजह से ये जो 250 बिलियन का हमें शॉर्ट फॉल आया है, तो ये भी बहुत से मसाइल है। लेकिन मैं बिल्कुल, मुझे यकीन है कि अगर आपस में ये तसादुम कम होगा और मिलके बैठेंगे और मसलों का जो एक मंतकी हल है निकालेंगे तो फिर ये देखिए। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या कहता है ताज साहब? मुझे ये बताइए कि आपका दिल मतलब है ये कहेगा कि जी मेयर जो है, सिंपल सा सवाल है कि बाइख्तियार हो और कल को यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी जीत जाए, यहाँ पर मतलब JUI जीत जाए, MQM PTI कोई जमात जीते, हम बात असूल की तय कर लेते हैं कि जी ये चीज़ हर शहर में होनी चाहिए। सखर के मेयर के पास इख्तियारात हों, लाड़काना के मेयर के पास इख्तियारात हों और कराची के मेयर के पास इख्तियारात हों। जी देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हमें हैं कि किस तरीके से धांधली हुई है और किस तरीके से फॉर्म 45 को 95% साइन डी नहीं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूँ असूल पहले तय कर लें, फिर बाकी तो वो है इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ है ना। तो अगर असूल आपने तय कर लिया कि ये होगा तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं, मैं ही नहीं, मेरी पार्टी के कई रहनुमा इस ख्याल से मुत्तफिक हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो जो शहरी हुकूमत है उसके पास होना चाहिए। तो मैंने जैसे पहले कहा कि नहीं, वो व्हाई नॉट ये जो आपने कहते हैं ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, और वो जो डेंसिटी बोर्ड बना दिया है हाई डेंसिटी का वो क्यों नहीं होना चाहिए? ये सारी मतलब अर्बन प्लानिंग की चीज़ें हैं। ये तो यहाँ सिंध कंट्रोल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों नहीं है? जी देखिए, आप कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की भी परफॉर्मेंस देख चुके। आप ये सॉलिड वेस्ट जो अथॉरिटी है इससे भी मैं ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ, बहुत किया जा सकता है। लेकिन कराची के कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो अपने आप को अलग किए हुए हैं और इत्तेफाक से वही डिस्ट्रिक्ट हैं कि यहाँ पे इस वक्त मुश्किल में पहले भी चले आपका नुक्ता नजर आ गया। अमीनुल हक साहब, ये बताइए कि एक ज़माने में MQM का बड़ा असर नफूज हुआ करता था। आपकी बातें जो थी, कहते हैं ना ऐवान इक़्तिदार में कोई भी बैठा हो लोग सुना करते थे, माना करते थे। तो जब बहुत अच्छे दिन थे और जब बहुत ताकत भी हुआ करती थी, क्यों नहीं आप लोगों ने वो जो स्ट्रक्चरल मसाइल थे उनको हल कराया? मेरी समझ से बालत है ये बात, जब मतलब है कि मौका था, जब हर चीज़ हो सकती थी। जी आमिर, आप ये देखिए कि जब जब MQM के पास ताकत रही है शहर तरक्की करता रहा है। मैं आपको मिसाल 1989 से देना शुरू कर देता हूं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर, मैं स्ट्रक्चर पे भी
जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 1989 पाकिस्तान का पहला फ्लाईओवर कहाँ बनता है? कराची में बनता है। पूरे पाकिस्तान के पूरे बर्र सगीर में किसी भी मेट्रोपॉलिटन के पास मेडिकल कॉलेज नहीं है। MQM के दौर में जब फारूक सत्तार मेयर थे तो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, और आज भी वो यानी 30 साल गुजरने के बावजूद भी कराची के बेस्ट कॉलेजेस में शुमार होता है। उसके बाद आप ये देखें कि 2006, 7, 8, 9 क्या सूरत हाल है, मतलब हर कोई ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर तमाम सियासी पार्टी के लोग कहते हैं कि उस दौर में कराची में तरक्की हुई है। तो ये जब हमारे पास इख्तियार आता है तो बिल्कुल हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने 2003 में 2004 में क्या किया, लोकल गवर्नमेंट एक्ट उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर के कोशिश की कि तमाम इख्तियारात मुकामी हुकूमत मजबूत हो ताकि मसाइल हल हो। लेकिन क्या हुआ कि 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अदवी अक्सरियत के बुनियाद पर उसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में तरमीम की, और तरमीम करने के बाद वो शहर जो है आपके हाथ से निकल गया। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिस तरह मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फिरदौस शमीम भाई ने बड़ा अच्छा बिल पेश किया है और बिल्कुल साफ गोई से काम लेते हुए कहा है कि मुकामी हुकूमतों को मजबूत होना चाहिए, और आपने उसमें ऐड कर दिया कि वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कराची का मेयर मजबूत हो, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि लाड़काना का मेयर भी मजबूत हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए लोकल अगर हम बात करते हैं जब मुकामी हुकूमतों की, तो हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो वहाँ हद इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि मुकामी लोग भी हो। अगर लियाकताबाद का SHO मियांवाली से आएगा, अगर न्यू कराची का SHO जो है लड़काने से आएगा, तो उसको वहाँ के डायनेमिक का नहीं पता होगा। मैंने अगर W11 पे सफ़र किया है या मैंने कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे धक्के खाए या मेरे आपने धक्के खाए, तो हमें कराची का डायनेमिक पता होता है। हमें न्यू कराची भी पता होता है, हमें केमाड़ी के बारे में भी पता है, हमें औरंगी टाउन के बारे में भी पता है, हमें यूसुफ गोड के बारे में भी पता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को लेकर आएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। मैं कह रहा था कि रूट का फर्क था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इख्तियार मिलने चाहिए। मैं कहता रूट का फर्क था। वो आपकी W11 थी, हमारी G3 हुआ करती थी, ठीक है ना, लेकिन धक्के एक जैसे मिला करते थे। फिरदौस साहब सवाल ये है कि हल क्या है, मतलब आप क्या तजावीज़, जो मेरे ख्याल में कि तमाम ग्रैंड कंसेंसस एक तो बनता हुआ नज़र आता है, आपको कामयाब हो सकते हैं, क्या तजवीज़ देंगे कि पीपल्स पार्टी जो रूठी रहती है वो भी आपकी बात मान ले और एक प्रैक्टिकल सा एक आप लोग सलूशन निकाल सकें? जी देखिए, इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है। अब कौन सा निज़ाम होना चाहिए उसके ऊपर जब भी मिलके बैठ के बात करने को तैयार हैं, हम भी तैयार हैं उसके ऊपर। हमने अपनी तरफ की तजावीज़ जो हैं वो असेंबली में भी जमा करा दी, और मैं बड़े खुले दिल के साथ तमाम पार्टियों के साथ कहने को, आओ मिल के बैठ कर मुल्क के निज़ाम को बेहतर करें, शहर के निज़ाम को बेहतर करें। देखिए माजी में भी क्या मसला था, माजी में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीज़ें क्यों ली, इससे कि उनको ये शक व शुबा है, और उसमें शायद कुछ हकीकत भी हो, कि जब ये बल्दियाती इदारे आते हैं तो उसके अंदर सियासी जमात के लोगों को दाखिल कर लिया जाता है और बेतहाशा लोगों को नौकरियां दी गई, और वो नौकरियों की वजह से वो माशी तौर पर वो इदारे फाल नहीं रहे। अब इसका हल जो उल्टा निकाला गया, रादर देन कि वो सिस्टम के अंदर के पोजीशंस पास हो, बजट के अंदर रहें, बजट के अंदर कितना पोर्शन कैसे हो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस डाला जाता, फ्रेमवर्क अच्छा हो, बिल्कुल उन्होंने निज़ामी तब्दील कर दिया और वो सारे इख्तियारात जो हैं सूबे के पास ले लिए। वो तो हल नहीं था। हल ये था कि जिस मेयर ने गलत नौकरियां दी उस मेयर को पकड़ के जो है एंटी करप्शन में डालना चाहिए था, और उसकी हो जाए इससे कि जो मुशर्रफ साहब का ज़माने का निज़ाम था उसके अंदर भी करप्शन बहुत हुई है। जो नाज़मीन थे उनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई थी। सुपरविजन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ चाहिए वो एग्जेक्टिव और पॉलिटिकल लोगों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, जिससे एग्जेक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस और जो पॉलिटिशियन है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड ओवरसाइट। दुरुस्त। ताज साहब मेरे पास तीनों चीजों को इस तरह मिक्स करेंगे तो सिस्टम सही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। खता कलामी करूँ ताज साहब, मेरे पास 20-30 सेकंड अगर आप इस पे कोई आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट्स दे सकें कि जिस स्पिरिट में बात हो रही है कि जी कंसेंसस होना चाहिए, मसले हल होने चाहिए। जी हाँ, वो तो हम हमेशा यही चाहते हैं, और जब भी साथ मिलके बैठे हैं तो 18वीं तरमीम भी हुई है, NFC भी आया है, ये सब है, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए आपको एनक्रोचमेंट
जो है वो तोड़ने होंगे। बॉटम लाइन है ये। बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, अमीनुल हक साहब, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ही कि सबसे बड़ा शहर है मुल्क का और उसके मसाइल जो है शहर से भी बड़े हैं और उसके जंगी बुनियादों पर उसका हल होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो कंसेंसस बना आज के प्रोग्राम का वो ये कि एक बाख्तियार मेयर होना चाहिए। आपके साथ न सिर्फ बाख्तियार मेयर हो बल्कि उसके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी भी हो ताकि वो कराची के लिए जो है फंड्स भी रेज कर सके और कराची के ऊपर खर्च भी कर सके। और ये बात सिर्फ कराची के लिए नहीं हो रही, हर अर्बन सेंटर में इसी तरह का बंदोबस्त होना चाहिए। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।